you, Ajay. Good evening, everyone. It's my pleasure to welcome our guest speaker today. I extend a very warm welcome to Ms. Shilpa Oja. She's a holistic healer, Vastu, and Feng Shui expert. She practices as a numerologist, soul and body Reiki healer, tarot master instructor, and consultant in addition to being a past life regression therapist. She also facilitates Reiki training, meditation techniques, soul guidance, and intuitive channelings. Shilpa ji is a postgraduate in biochemistry, but from childhood, she had a spiritual bend of mind. She often surprised people and herself by reading their faces accurately. As she came of age, her intuition became stronger, her belief in things spiritual, firmer, and her desire to make healing her chosen path stronger. She has cured till date more than 100 cases of health issues like arthritis, PCOD, spondylitis, depression, mental disorder fears, and phobias, varicose vein, schizophrenia, and many more where science could not help. She believes in where science wavers, spirituality begins. Shobhaji practices in Mumbai. She has a considerable size of a clientele that ranges from corporate leaders to artists, from politicians to business persons, from students to teachers, from women on the move to homemakers. Her mission now is to bring health, peace, and awareness to individuals and groups for attaining balance and harmony between mind, body, and soul through a holistic approach. Thank you, Shilpaji, for joining us. Over to you now. Thank you so much. Thank you so much for calling me on this stage. This first we'll start with the Pune city. Why Vastu is important. Pune city has two rivers, Mula and Mutha. Am I audible? Yeah. Okay. Yes. Yeah. So Pune city has two rivers, Mula and Mutha. Because of these two rivers, cosmic energy of this Pune city is very good, and because of that, Pune city is a education hub, and environment or weather of this city is beautiful. Even this British government governor also used to come and stay in this city, so that Vastu plays a very important role in your city also. So uh, I would like to say then what is the Vastu? Vastu is a uh, uh, Vastu Shastra is a this thing Indian ancient art of architecture since 6000 BC and 3000 BC. Even Buddhism equally follows this. So Vastu Shastra has a very ancient thing, and we have just Vedic uh, actual Vastu Shastra who discovered we don't know because it has says this a Vedic time. और जब हम बात करते हैं Vartukit based on the principles of layout, measurements, directions, and size of this plot. So Vastu plays a very important role in each and everyone's life. Like similarly, what is Feng Shui? Feng Shui is uh, a balancing of science, like 5 elements: earth, water, wood, fire, and metal. Vastu is based on direction, and Feng Shui is based on the balancing of the metal. I have divided Vastu into 3 categories like Vedic Vastu, Astro Vastu, and Mahavastu. In Vedic Vastu, we deal with the directions. As we all know, the directions like east, west, south, and north. In Astro Vastu, we consider direction as well as that person's horoscope or planet. Like if that person has some chart in numerology, he has some Mangal dosh or Mangal problem. So accordingly, we'll give enhancement to that Mangal ka problem in Astro Vastu. In
महावास्तु देर इज नो ऑल्ट्रेशन, जैसे हम बताया जाता है कि महावास्तु में हम कोई ऐसे चेंजेस नहीं करते हैं। सो महावास्तु जो होता है उसमें डिमोलिश और कोई चीज की तोड़ा फोड़ वी डोंट एडवाइज, बिकॉज उसमें हम एनर्जी ऑल्टर करते हैं। जैसे कोई चीज में हमने कलर थेरेपी दे दी, कोई चीज में हमने जैसे एनहांसमेंट ऑफ मेटल दे दिया, या फिर हमने उस चीज को एनर्जाइज कर दिया, फायर की जगह को हमने एनर्जाइज कर दिया, हमने कोई कोई चीज पेंटिंग से उस चीज को एडजस्ट किया, हमारे घर में डाइनिंग टेबल या हम जैसे बैठते हैं, कहाँ खाना खाते हैं, उस चीज को हमने एडजस्ट कर दिया। सो महावास्तु इज दैट। सिमिलरली जैसे फेंगशुई जो है वो भी उसी तरीके से है। फेंगशुई और वास्तु में ये सिमिलैरिटी है कि इसमें महावास्तु में ये सिमिलैरिटी है कि इसमें हम कोई भी किस्म की तोड़ा फोड़ी, जैसे वी कॉल इट डिमोलिश, वो हम नहीं करते। वी जस्ट चेंज द एनर्जी एंड वी बैलेंस द एनर्जी। बेसिकली Feng Shui is a balancing of yin and yang energy and balancing of these 5 metals like we use in this Mahavastu. जैसे महावास्तु और फेंग शुई ये थोड़ी सी सिमिलर है, तो ये सिमिलैरिटी है। बट वास्तुशास्त्र इज अ इंडियन थिंग एंड फेंग शुई इज अ चाइनीज थिंग। तो ये दोनों में ये बड़ा डिफरेंस है। जैसे हम कभी वास्तु करने जाते हैं तो बहुत सारे जनों का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि कौन से साइड का एंट्रेंस हमको चूज करना चाहिए। व्हेन आई गो फॉर द वास्तु, always I feel whenever outside there is a picture of Ganesha, so I always feel कि Ganesha होना outside it is very good, but you should put that Ganesha picture inside also. So ये चीज 90% पीपल ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब हम कोई भी घर में वास्तु करने जाते हैं, उनके घर में गणेशा का पिक्चर तो होता है बाहर के साइड, बट अंदर के साइड कोई गणेशा का पिक्चर नहीं होता है। दैट क्रिएट्स अ मेजर ब्लॉकेज इन द वास्तु, और यू कैन से मेजर नेगेटिविटी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है वास्तु में कि गणेश जी के पीछे दरिद्रता होती है, और ये दरिद्रता फिर तुम्हारे घर में आ रही है। बाहर तो तुमने गणेशा लगा दिया है, पर इनसाइड जो है वहां पे कुछ नहीं है। अगर आपको गणेशा बाहर लगाना है, इफ यू वांट टू पुट आउटसाइड गणेशा, देन यू कैन पुट इनसाइड आल्सो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज see whenever I go for the vastu, and always I wanted to tell you this because 90% people does this mistake. When we enter in the house, so हम सब में पहले उस घर का हम किचन देखते हैं। तो किचन में एक प्रॉब्लम होता है, किचन शुड बी इन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो हम इसको अग्निकोण कहते हैं, अगर किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो हम उस चीज को बैलेंस करते हैं, बिकॉज फ्लैट में बहुत तोड़ा फोड़ पॉसिबल नहीं होती है। इवन पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट कि हमको ये सब नहीं चाहिए। बट कभी कभी मैंने देखा है, जब मैं जाती हूँ वास्तु करने, घर तो बहुत अच्छा है, सब वास्तु के हिसाब से है, पर किचन वास्तु के हिसाब से नहीं है, बिकॉज नो वन गिव्स इम्पोर्टेंस टू किचन एरिया। किचन एरिया को अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या उसको गलत तरीके से बना लेते हैं, तो घर की जो लेडी है उसके हेल्थ पे बहुत बड़ा असर आता है, और उसकी हेल्थ डे बाय डे खराब रहने लगती है। तो उस चीज का जो हम करते हैं निवारण, फिर ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट कहाँ है उस घर का। जहां भी साउथ ईस्ट है उस घर का, उस जगह पे मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम 20 डेज कैंडल ये करो। फेंगशुई के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो फेंगशुई भी वहां पे हम थोड़ा सा एनहांस करते हैं। व्हेन वी यूज फेंगशुई एंड वास्तु कंबाइंडली, द रिजल्ट इज ऑसम। फेंगशुई के हिसाब से हम वहां पे पिंक कलर का एडवाइस करते हैं, जो भी घर का तुम्हारा साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट का ये करेक्शन हो गया। सेकंड प्रॉब्लम, जहाँ पे साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, उस घर का अग्निकोण जो बाधित है, उस घर में हमेशा मेड्स की प्रॉब्लम रहेगी। आप देखेंगे कि मेड्स की प्रॉब्लम इन दिनों बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर एक जन इज वरीड अबाउट माय मेड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बहुत छुट्टी करती है, छोड़ के चली जाती। इवन इफ योर ऑफिस
जहाँ पे अग्निकोण में कुछ और गलत चीजें बनी हुई है, तो वहां पे भी तुम्हारे स्टाफ की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये स्टाफ की प्रॉब्लम, मेट्स की प्रॉब्लम भी अग्निकोण अगर ठीक नहीं है तो वहां पे आएगी। तो उसका करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका करेक्शन होता है, तुम साउथ ईस्ट में कैंडल जलाओ 20 दिन, एक आधे घंटे के लिए। उसके बाद यू कैन एनहांस दैट प्लेस बाय पुटिंग सम पिंक कलर और पिंक फ्लावर। और उसके हिसाब से अगर साउथ ईस्ट में अगर उस घर का टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है, तो उस घर की प्रोग्रेस तो फिर मुश्किल ही है। जैसे मैं कई बार जाती हूँ तो घर तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बट उनको पता ही नहीं है साउथ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम बनाया हुआ है, दूसरा टॉयलेट बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में बनाया हुआ है। सो एक तो होता है किचन का, और नॉर्थ ईस्ट अगेन इज फॉर गॉड गॉडेस। सो दोनों अगर वहां पे नेगेटिविटी है, तो उस घर में ग्रोथ होना या उनके करियर अच्छा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस हिसाब से हम फिर उस जगह को ये जो है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में जो टॉयलेट बाथरूम बनता है, उसका तोड़ नहीं है। अगर आप घर देख रहे हो या आपके घर में ये बना हुआ है, तो उस घर में 101% प्रॉब्लम तो है ही, बट उसका हम कोई तोड़ करें तो वो इफेक्ट कम होता है, बट नील नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस जगह को या तो आप बंद कर सकते हो तो बंद कर दीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है बंद करना, तो वहां पे आप एक सॉल्ट का बोल रख सकते हो। सॉल्ट बोल रखने से क्या होता है, वो नेगेटिव एनर्जी वहां से कम हो जाती है। देन यू कैन पुट ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर यू कैन पुट देयर। उससे ये साउथ ईस्ट का एंड नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट बाथरूम है, उसका एनर्जी कम हो जाता है। ये हुआ किचन का बात। जब हम घर में एंटर करते हैं, तो ये किचन हो गया। एंट्रेंस जब घर का होना चाहिए, वी शुड अवॉइड साउथ फेसिंग एंट्रेंस, बिकॉज साउथ इज, वी कॉल इट यम का द्वार। जो साउथ फेसिंग जो घर होते हैं, उसमें क्या होता है कि तुमको हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत होती है, और अनसडन एक्सीडेंट, डेथ, ये सब आपको फेस करना पड़ता है। as long as if you can avoid south facing, it is better. If you can't avoid and you don't have any choice, then we suggest there is साउथ में जब आप रहते हो, तो साउथ के ऊपर जैसे गणेशा का पिक्चर लगाते हैं, जैसे 5 मुखी हनुमान का पिक्चर लगाना एडवाइजेबल है। दूसरा चीज होता है, जब आप अंदर आते हो तो तुम्हारा किचन हो गया, तुम्हारा एंट्रेंस हो गया, देन तुम्हारा होता है रिलेशनशिप का कॉर्नर, जो साउथ वेस्ट कहा जाता है। साउथ वेस्ट में ऐसा होता है, अगर मैं हमेशा देखती हूँ कि देर इज नो हार्मनी इन रिलेशनशिप। कहीं हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उनको बच्चा नहीं हो रहा है, शी इज नॉट एबल टू कंसीव, और उनकी मदर इन लॉ से या उनके घर के जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनमें बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। सो जो घर का मेन मेंबर है, मास्टर ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इनको साउथ वेस्ट का घर दीजिए। मैं हमेशा देखती हूँ कि साउथ वेस्ट का जो बेडरूम होता है, वहां पे अगर कुछ और चीज बनी हुई है, तो तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। फिर ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम तुम्हारे हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, तुम्हारे घर के फैमिली मेंबर्स की भी हो सकती है, तुम्हारे ऑफिस में भी इन सब चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग इन द राइट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट इज अ रिलेशनशिप कॉर्नर। सो आप मास्टर जो है घर का, उसको साउथ वेस्ट का रूम दे दीजिए, उससे उनके रिलेशनशिप काफी अच्छे हो जाते हैं। अगर साउथ वेस्ट का जो रूम है, और वो बेडरूम जो है उनका साउथ वेस्ट में नहीं बनाया हुआ है, एक एंगल होता है, अगर वो एंगल बराबर से नहीं बैठ रहा है साउथ वेस्ट के लिए, तो वी सजेस्ट अनदर वेरी गुड कैंडल थेरेपी फॉर दिस। मैं जहाँ भी जाती हूँ, तो ये साउथ वेस्ट का जो भी प्रॉब्लम है, फ्लैट में पॉसिबल बहुत कम चीजें होती है कि सारी चीजें एक इसमें आए, तो then we do some feng shui, some vastu, and we give them some remedy for this. साउथ वेस्ट का ये जो प्रॉब्लम है, उसके लिए सब में अच्छा चीज ये है, जब हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, तो वाइफ ने
जो रूम है उनका, जो बेडरूम है उसका साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वो देखना चाहिए, और उनके साउथ वेस्ट कॉर्नर में रेड एंड पिंक कलर का कैंडल जलाना चाहिए। उससे इनका रिलेशनशिप धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है, और आफ्टर सम टाइम उन दोनों में हार्मनी बढ़ने लगती है, और अननेसेसरी जो कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े चलते रहते हैं उसका भी इनको प्रॉब्लम इनकी सॉल्व होती है। सो ये साउथ वेस्ट का ये जो प्रॉब्लम है ये इससे होता है। अब जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट का ये अगर प्रॉब्लम होता है, नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज फॉर गॉड गॉडेस, और या फिर तुम घर में उसको मंदिर की जगह बनाइए, या फिर आपके बच्चों को आप स्टडी रूम भी दे दीजिए। मैंने बहुत बार देखा है कि एक ही बच्चा है पर पढ़ता नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, उसका मन ही नहीं लगता है कंसंट्रेशन में। जब घर में जाके देखा तो उसका बेडरूम तो कहीं और आ रहा है, या वो ठीक से जहाँ पे बैठ रहा है वो पढ़ने भी ठीक से नहीं बैठ रहा है। उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में कुछ अलग चीजें रखी हुई है। तो फॉर स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट इज द आइडियल प्लेस फॉर स्टडी। और अगर वो लोगों का कमरा नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कहीं और है, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट में वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके जो फ्लैट है, उनका जो घर है, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में एक कॉपर बॉटम में एक पानी भर के रख सकते हैं, जिससे कि तुम्हारे बच्चे का करियर बहुत अच्छा हो सकता है। अगर ये पानी रोज बदलना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि आपने एक बार रख दिया और वो बदला ही नहीं। रोज पहले नहाने के बाद आप ये नॉर्थ ईस्ट का पानी बदलिए। उससे नॉर्थ ईस्ट जो वाटर एलिमेंट है, एज पर फेंग शुई एंड एज पर वास्तु, नॉर्थ ईस्ट पानी की जगह है। पानी की जगह में विद्या बहुत अच्छे से आती है। जैसे पुणे सिटी वी कॉल इट एजुकेशन हब बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई हैव, जैसे आई हैव टोल्ड यू दैट इट हैज टू रिवर्स। सो वैसे ही हम अगर नॉर्थ ईस्ट में दो एक पानी का ये भर के रखते हैं, और उसका घर को कलर हम सेटल कलर देते हैं, जैसे पानी का कलर होता है व्हाइट, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, उस तरीके का देते हैं, तो वो बच्चा भी अच्छा पढ़ने लगता है, उसका कंसंट्रेशन भी होता है। एंड whenever he want to study he should face towards a north direction। नॉर्थ डायरेक्शन का ऐसा है कि ऐसा बैठने से उत्तर को हम कहते हैं कि जब वो उत्तर दिशा में बैठता है तो उसको उत्तर फटाफट मिलते हैं। तो ये उसका बेनिफिट है। अगेन लास्ट पोजीशन इज नॉर्थ वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट में हम बोलते हैं, जब नॉर्थ वेस्ट का अगर हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट को किसने देना चाहिए, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अगर किसी के यहाँ जब मैं वास्तु के लिए गई थी तो वहां पे एक लेडी को बहुत भयानक डिप्रेशन, एंजाइटी हुआ करती थी, और ऐसा घर में स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में नहीं आता था किसी को भी कि ये एंजाइटी डिप्रेशन इतना क्यों है। जब जब भी वो सोने जाती है उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है, उसको नींद नहीं आती है बराबर से। फिर वो घर में जब जाने के बाद पता चला कि वो जो कमरा है वो नॉर्थ वेस्ट का है। सो नॉर्थ वेस्ट जो होता है जनरली इट इज फॉर गेस्ट रूम, या फिर आप वहां पे कोई भारी चीज रख सकते हैं, बट नॉर्थ वेस्ट का अगर आपका बेडरूम है खास, तो उस व्यक्ति को मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या नींद की प्रॉब्लम ये होनी ही होनी है। तो इस हिसाब से अगर आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है तो आप उस चीज को अवॉइड करिए, उसको गेस्ट रूम बना दीजिए। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन नॉर्थ वेस्ट के कमरे में आप उसको एनर्जाइज किस तरीके से कर सकते हैं, भीम का एक स्टैच्यू या फिर उसका जो एक फेस मिलता है, या बारासिंगा उसका जो फेस मिलता है, वो आप नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में लगाइए। इससे वो पूरा हमारा जो माइंड का जो नेगेटिविटी है, क्लटर है, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है, नींद भी आती है और उनको अच्छा भी फील होने लगेगा थोड़े दिन में। देन यू कैन पुट सम क्रिस्टल्स आल्सो, देन यू कैन enhance that room by some color therapy also, as per that person's number, और उनका जो भी नंबर है उस हिसाब से आप घर में उसको कलर दे दीजिए, और उस घर में क्रिस्टल लगा दीजिए थोड़ा सा।
डिफ्यूजर लगा दीजिए या बारहसिंगा का एक फोटो लगा दीजिए, पिक्चर लगा दीजिए, उससे वो नॉर्थ वेस्ट का एनर्जी थोड़ा सा कम होता है। और आपको ये जो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट के कमरे में जो सोता है उसको नर्व्स की प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। सो ये चीजें उससे सॉल्व होती है। सो ये जो चार चीजें हैं, ये चार डायरेक्शंस जो है, ये वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फोर मेन डायरेक्शंस एंड फोर दिस साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये चार टोटल 8 दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हम ये वास्तु अगर करते हैं तो उसको कभी कभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें, ना तोड़ा फोड़ी कर सकते हैं, ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। that time feng shui plays a very important role, because feng shui, when we do feng shui, it is very easy to do, first thing. Second thing, it is easily available everywhere, और इससे immediately तुम्हारे एनर्जी में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे जैसे अगर आपको एक ही चीज फेंगशुई की रखना है तो एक फेंगशुई का पेंटिंग मिलता है। फेंगशुई की पेंटिंग में ऑल 5 एलिमेंट्स आते हैं जिस सो आप वो रख सकते हैं, जिससे उस घर का या उस रूम का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। जैसे फेंगशुई में हम बताते हैं कि आप टॉर्टोइज रख लो। टॉर्टोइज की जगह होती है नॉर्थ ईस्ट, सो आप नॉर्थ ईस्ट में रख लो टॉर्टोइज, उससे आपका फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाता है। टॉर्टोइज रखने से फाइनेंस तो अच्छा हो ही जाता है, प्लस जो केयरिंग एंड लव जिसको घर में चाहिए होता है वो भी उसको मिलता है। किसी एक ने मुझे पूछा था कि अगर हमको फेंगशुई बेडरूम में रखना है तो क्या चीज रखनी चाहिए। तो उनके लिए एक तो वो मैं बोलूंगी कि आप अगर बेडरूम में अगर कुछ रखना है आपको, तो एक तो मैंडेरियन डक मिलता है, जो फेंगशुई के हिसाब से बहुत अच्छा चीज है, जिससे तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, तुम्हारा कोई हैप्पी पिक्चर है तुम्हारे, जैसे हैप्पी टाइम्स का, न्यूली वेड का, सो आप वो लगा सकते हो, जिससे को देखकर पता चलता है यू गेट गुड काइंड ऑफ एनर्जी। सो वो अगर आप लगा देते हो तो उससे ये तुम्हारा जो बेडरूम है उसका जो प्रॉब्लम है या नेगेटिव एनर्जी है वो ठीक हो जाती है। सेकेंड चीज होती है, ये तो हमने देखा कि वास्तुशास्त्र जैसे क्या करना चाहिए, उसमें फेंगशुई ऑल्सो भी कंबाइन। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं कि कोई भी घर में जाने के बाद फील होता है, अनप्लेजेंटनेस फील होता है या घबराहट फील होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी, लॉट ऑफ क्लटर। सब में पहला वास्तु और फेंगशुई का दोनों का रूल है कि आप जितना क्लटर घर में से निकाल सकते हो, कोई भी टूटी फूटी चीज या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको फील होता है कि ये चीज काम नहीं कर रही है, जैसे पुराने चार्जर्स है, मोबाइल फोन है, टेप रिकॉर्डर्स है, या पुराने टीवी है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक वायर नीचे गिरा हुआ है, कोई लटक रहा है, घर में क्रैक्स आ रहे हैं, सो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी। सो जहां भी ये अगर होती है तो आप लोगों को सबको यही एडवाइस है कि अगर आपके घर में इस तरीके की एनर्जी है, सो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर हाउस। सो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको ठीक करिए। दूसरा चीज होता है कि एक नल, जिसके घर में पानी बहता है, जिसके घर में आ, हमेशा नल या फिर मटके का या कोई भी चीज का नल जो होते हैं वो लीक होते हैं, देयर इज लीकेज इन द हाउस, सो उस घर में पैसा कभी भी नहीं टिकेगा। एज पर वास्तु, एज पर फेंगशुई एंड एनवायरमेंट के हिसाब से भी वो ठीक नहीं है। सो हमारे घर के हम लीकेज जितने भी है, सो हम वो भी ठीक करें। हमारे घर को हम बहुत अच्छा एनर्जाइज इन अ सिंपल वे कैसे कर सकते हैं? सो सिंपल करने के लिए व्हाट वी कैन डू, जब हम पहले तो हमने हमारे घर का क्लटर पूरा साफ कर दिया, फिर क्लटर साफ किया, घर में टूटी फूटी चीजें जो होती है उसको हम ठीक कर दिया। उसके बाद फिर उस घर को हम क्लेंजिंग कैसे करेंगे? क्लेंजिंग करने का सब में अच्छा तरीका, जब हम आरती करते हैं या कोई इंसेंस स्टिक लगाते हैं, सो वो भी एक बहुत अच्छा चीज है। या फिर कोई सेज जलाते हैं, एक फेंगशुई सेज मिलता है मार्केट में या फेंगशुई शॉप में, उसको जलाने से
घर का जो नेगेटिविटी है वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। फिर हम जब घर को क्लीनिंग कैसे करेंगे, हम घर में क्लीनिंग एक बोल ऑफ सॉल्ट लेंगे और एक लेमन, उसको हम काट के पानी में डाल देंगे। विल सोक दिस फॉर ओवरनाइट एंड नेक्स्ट डे विल यूज दिस वाटर फॉर मॉपिंग द हाउस। It gives miraculous result in your health, in your business. If you have any kind of business और वो business बहुत ठप पड़ा हुआ है, तो मैंने ये चीज तो this is my remedy, और मैं ये देखती हूँ कि हमेशा किसी का भी business बहुत ठंडा चल रहा है, those who work from home also or they have some outlet also, तो उनका ये जो बिजनेस है वो चल नहीं रहा है, तो ये सिंपल रेमेडी से उनका बिजनेस या घर की नेगेटिविटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ आपको कि क्लीनिंग एंड क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हाउस। सो ये चीजें अगर आप छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो जिससे हमारा घर का जो एनर्जी होता है या ऑरा होता है वो बहुत अच्छा होके हम उस घर में हमको अच्छा फील होता है। और जिस घर में अच्छा एनर्जी है, जिस घर का वास्तु अच्छा है, उस घर का प्रोग्रेस तो होना ही होना है। जैसे एक घर में मैं गई थी जहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेटेड पीपल, बट उनको किसी को जॉब ही नहीं है, या फिर जॉब मिलती है तो 2 महीने बाद रुक जाती है, या कुछ होता है, प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है। फिर जब देखा तो उनके घर का जो एंट्रेंस था वो नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस था, और उनका जो बेडरूम था वो साउथ में था। तो ऐसे सिचुएशन में जब तुम अलमीरा भी रखते हो, अगर तुम्हारा अलमीरा भी साउथ में रखा हुआ है, तो यू विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी, और इवन दो इफ यू विल अर्न मनी यू विल नॉट बी एबल टू सेव मनी। सो दैट इज अगेन अ मेजर वास्तु दोष इन दैट हाउस। सो जब मैं उस वास्तु दोष को जब जितना हो सके हमने करेक्शन किया, साउथ का हटा के हमने नॉर्थ में कर दिया वो जो अलमीरा था, और नॉर्थ वेस्ट का जो घर था उसको हमने कुछ कुछ चीजें देकर, पिरामिड जैसे जो थ्रेशोल्ड होता है घर का, क्योंकि हम एंट्रेंस तो बदल नहीं सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर जो घर का जो थ्रेशोल्ड है उसके अंदर भी पुट पिरामिड्स, सो दैट जो भी एंटर करता है उसको he will enter with the positivity. And after that उनका वो जो ब्रदर थे, उनका जो करियर है आफ्टर 6 मंथ्स उनका करियर काफी हद तक सेट हुआ, और जितनी जो प्रॉब्लम वो लोग फेस करते थे वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई, एंड आफ्टर आफ्टर दैट वो लोग अपना एक घर अच्छा खरीद पाए। सो ये सब जो चीजें होती है ये उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है डे टू डे लाइफ में। जब हम प्रॉपर वास्तु में रहते हैं तो हमारे घर का ऑरा बहुत अलग रहता है। कोई भी अगर उस घर में आता है तो उसको फील होता है कि इस घर में कुछ पॉजिटिविटी है। अगर घर में बहुत ज्यादा क्लटर रखा हुआ है, नेगेटिविटी है, कभी घर की सफाई नहीं की है, डस्टिंग नहीं की है, ऐसे घर में एंटिटीज, जिसको हम बुरे साए भी बोलते हैं, वो घर में बहुत जल्दी आके तुम्हारी जो ग्रोथ है उतनी ही नीचे आ सकती है। इसीलिए क्लेंजिंग ऑफ द हाउस ऑन रिमूविंग क्लटर फ्रॉम द हाउस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ये सब चीजें अगर आप करते हो तो तुम्हारी जो ग्रोथ है वो तो होनी ही होनी है। फिर जब हम बात करते हैं कि घर में किस तरीके का हमारा शेप होना चाहिए, तो आई ऑलवेज एडवाइज कि घर अब जब आप देखने जाते हो तो आप स्क्वायर शेप का घर लो या रेक्टेंगल तरीके का घर लो। थोड़ा सा कोई कॉर्नर कटा हुआ है, ट्रायंगल में है या गोल में है, उस घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उस घर में उनके लोगों का करियर नहीं अच्छा होता है, मैरिजेस नहीं अच्छी होती है, या कोई भी अच्छा काम उस घर में नहीं होता है, और उस घर में बहुत नेगेटिविटी होती है। और जब आप फर्नीचर की बात करते हो, इवन यू शुड अवॉइड फर्नीचर ऑल्सो, जैसे राउंड टेबल, डाइनिंग टेबल बहुत जन प्रेफर करते हैं, तो आई ऑलवेज से कि राउंड फर्नीचर आप अवॉइड करिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। फिर घर में जैसे पेंटिंग होती है, painting also equally plays a very important role, because these days people are fascinated with this modern paintings,
मॉडर्न पेंटिंग्स अब जब आप देखते हो तो उसमें एक आंख में से ब्लड निकल रहा है, आंसू आ रहा है, या फिर समथिंग रेड 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 स्ट्रक्चर, या जो भी आप उसको देखिए पहले आपको कैसी फीलिंग आ रही है. इफ यू आर गेटिंग प्लेजेंट फीलिंग देन इट इज फाइन, बट इफ यू आर गेटिंग वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इन शॉर्ट यू शुड अवॉइड दिस मॉडर्न पेंटिंग. अगर आपको पेंटिंग रखने ही है तो आप बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बाजार में मिलते हैं वो रख सकते हैं. जैसे बेडरूम में अगर आपको पेंटिंग रखना है तो प्लीज अवॉइड सिंगल लेडी का पेंटिंग, बुद्धा पेंटिंग. उससे क्या होता है कि आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स है उसमें प्रॉब्लम आती है. दैट लेडी फील्स वेरी लोनली इन दैट हाउस. सो इस तरीके का आप अवॉइड करिए. वहां पे राधा कृष्ण की पेंटिंग रख सकते हैं. वैसे बेडरूम में आई नेवर एडवाइज यू शुड कीप गॉड गॉडेस, बट राधा कृष्ण इज एब्सोल्युटली फाइन इन योर बेडरूम. और आपका जो हॉल है, लिविंग रूम है, उसमें आप बहुत ज्यादा बोलते हैं कि फिश एक्वेरियम रखना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ फिश एक्वेरियम इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट वो अगर फिश मरती है तो अगेन इट्स अ नेगेटिविटी. आप उसके बजाय फिश के ये मिलते हैं, छोटे छोटे आइडल्स मिलते हैं, फिश के छोटे छोटे पेंटिंग्स मिलते हैं, आप वो रखिए. हॉल में आप 7 हॉर्सेस का पेंटिंग रखिए. नंबर जो है वो 7 5 इज फाइन, बट 8 हॉर्सेस का पेंटिंग अगेन यू शुड अवॉइड. सो ये सब पेंटिंग रखने से भी आपके घर का वास्तु, आपके घर का एनर्जी बहुत प्लेजेंट होता है, और ये जितनी चीजें छोटी छोटी लगती है वो उतनी ही इफेक्टिव होती है. when we talk about plants, जब हमारे घर में प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स तो एनर्जी प्यूरिफायर होते हैं. वी शुड हैव एनर्जी प्यूरिफिकेशन वाले प्लांट्स. लाइक वी शुड अवॉइड थॉर्नी प्लांट जिसको कांटे होते हैं, वो सब हम नहीं लगाएंगे. कांटे है पर उसमें कांटे में रोज फ्लावरी प्लांट्स इज एब्सोल्युटली फाइन, बट कांटे वाले जितने भी कैक्टस फैमिली है उसको हम अवॉइड करेंगे. हम बैम्बू प्लांट रखेंगे, हम मनी प्लांट रखेंगे, हम स्नेक प्लांट रखेंगे. इवन अगर तुम्हारा बंगलो है तो हम पारिजात का प्लांट भी रख सकते हैं. वास्तु के हिसाब से पारिजात का प्लांट सब में पायस प्लांट कहा जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है ये प्लांट. तो इस हिसाब से आप अगर घर को या वास्तु को एनर्जी देते हैं तो आपके घर का प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है. So I think this subject is very vast, so I can go on and on this topic, but there is a limitation of time, so we'll take some few questions now. So anyone read question for me? So, Shilpa ji, I think so. There were few questions which was posted in a Google sheet. So, in case you can write, in case you I can will, answer I, them, the yeah. name, so that will be helpful. And there are few questions on chat box also. I'll read it for you. Okay, so name I haven't written, so can you say that name for me, please? First question is this, कि are Vastu norms opposite or different for India versus Australia? ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है मुझे. But तो ठीक है, anyway, you can answer this without name also. Yeah. ओके फाइन. सो इसका आंसर ये है कि डेफिनेटली इट इज एब्सोल्युटली अपोजिट. इंडिया में जो वास्तु चलता है वो वैदिक वास्तु चलता है, और वास्तु बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड. सो हम जिस इंडिया कंट्री में रहते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. तो वास्तु के जो नॉर्म्स है वो इंडिया और वास्तु के लिए एब्सोल्युटली अपोजिट हो जाते हैं. ये मिस्टेक लोग बहुत ज्यादा करते हैं. ये मिथ है कि वास्तु सबके लिए बहुत सिमिलर होता है. क्यों हम बाहर जाते हैं, हम बुक्स रीड करते हैं और हम वास्तु की बुक खरीद लेते हैं और हम वास्तु करते हैं, बट जो चीज इंडिया में एप्लीकेबल है वो बाहर के कंट्री में एप्लीकेबल नहीं है. ये सब में बड़ा प्रॉब्लम है और सब में बड़ा दोष है कि आप इंडिया का वास्तु अगर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी ही. जैसे इंडिया का वास्तु एकदम बेसिक वैदिक वास्तु एंड ऑस्ट्रेलिया का जो है गॉथिक वास्तु पे डिपेंड करता है. तो आपने ध्यान रखना चाहिए कि इफ यू आर इन इंडिया देन ओनली दिस व्हाटएवर आई हैव सेड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिया. और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो
इक्वली अपोजिट होता है। जो अगर जैसे हम नॉर्थ साइड बहुत अच्छी मानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में साउथ जो एंट्रेंस है वो अच्छा माना जाता है। ओके, अनिल बोरा ने ये क्वेश्चन पूछा था शायद, सो उनके लिए ये जवाब है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज plants which are good to keep, which room is good for kid, and what paint we should. श्रुति सिंह ने ये क्वेश्चन पूछा है। सो प्लांट विच आर गुड, सो जैसे ही मैंने बताया कि प्लांट में सब में अच्छा बैम्बू प्लांट होता है, बिकॉज इट इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड यू कैन कीप एनीवेयर, बिकॉज इट्स अ वुड एलिमेंट। एंड वास्तु के हिसाब से ये एक नॉर्थ ईस्ट मनी फैमिली से आता है, तो आप ये बैम्बू प्लांट रख सकते हैं, तुलसी का प्लांट रख सकते हैं, स्नेक प्लांट रख सकते हैं, और इसमें आप लिली के जो फ्लावरी प्लांट है जिसको रोज फूल आते हैं वो भी रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन विच इज द, देन उन्होंने आगे पूछा था कि विच रूम इज गुड फॉर किड्स। सो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का जो भी रूम होता है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे ही मैंने कहा, ईस्ट and northeast is ideal for kids, and they should facing toward north direction. And color, if they want to choose, they can choose white, silver color, light green color, settle color they should choose, and at times blue also. Then next question is, ये मनीष सिंह ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वन थिंग दैट यू विल सजेस्ट एवरीवन शुड कीप इन बेडरूम फॉर बेटर फेंग शुई। सो सब में बेटर फेंग शुई ना इजीली अवेलेबल जो चीज होती है जो बेडरूम में रखी जाती है वो तुम्हारी फैमिली पिक्चर होती है। तुम्हारी फैमिली पिक्चर, हैप्पी टाइम्स की पिक्चर आप आपके बेडरूम में रखिए, बट एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, इसमें आपकी जो फोटो है वो आप साउथ वॉल पे कभी ना लगाएं। You should be on north wall, east, west, anywhere, but not south. South जो होता है वो हमारे departed souls के लिए होता है। So ये भी लोग गलती बहुत ज्यादा करते हैं। That is why I'm insisting on the direction. So you should avoid south wall for your family picture. Then Mandarin duck is also equally good. It enhances your harmony and relationship. So आप वो सब कर सकते हैं। Then अनिल बोरा ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, इज होम एंट्रेंस फ्रॉम ईस्ट इज ओके, गुड और बैड? होम एंट्रेंस ईस्ट इज ऑलवेज फाइन एंड इट इज ऑलवेज गुड। सो एंट्रेंस सिर्फ आपको जो अवॉइड करना है वो आप साउथ का अवॉइड करिए, बाकी जो चीजें हैं वो सारे एंट्रेंस ठीक है। एक नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो एट टाइम्स किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को नहीं सूट करता है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन हिज चार्ट हॉरोस्कोप, वो देख के हम बता सकते हैं। देन डॉक्टर नेहा कुलकर्णी जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ ओल्ड इज दिस साइंस एंड हाउ कैन वन अप्लाई दिस साइंस टू पर्सन हु लिव इन हट और स्लम? ऐसा है, ये जो साइंस है वी कॉल इट इज 6000 बीसी और 3000 बीसी, बट ये जो फर्स्ट टाइम जब इसका वास्तुशास्त्र का हमने प्रूफ मिला था, वो जो मिला था वो बृहद संहिता में मिला था, जो उससे भी पुराना है। सो इट इज अ, वी कैन से इट्स अ वैदिक टाइम, वेयर इज टाइम इज रियली अननोन। और स्लम और हट में अगर वास्तु करना है तो वहां तो ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होती है। एक रूम होती है जनरली जहाँ पे आप क्या किस इसमें करोगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें तुम ये नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इन सच केसेस वी ऑलवेज सजेस्ट दैट कि उस घर का आप ऑरा एनर्जी उसको एनहांस करिए, घर में का क्लटर जितना भी है वो सब आप रिमूव कर दीजिए, और घर में का क्लटर रिमूव करने के बाद आप घर में नीट एंड क्लीन रखिए, एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, प्लस उस घर में आप क्लेंजिंग सॉल्ट और लेमन से कर सकते हैं। आप एक बोल सॉल्ट रख सकते हैं। ये जो चीजें हैं वो हट और स्लम में इजीली आप कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट कैन चेंज योर दिस थिंग। देन एक शिरीष मोइले जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, वास्तुशास्त्र
are ancient Sanskrit manuals of architecture. According to historians such as Dr. Havell and Alexander and James Ferguson, Vastu Shastra developed at some times between 6000 BC and 3000 BC. But in this period, we were not having any temple. It is recorded because archaeological did not find any temple in Indus Valley civilization. The temple architecture started in 3rd AD in Gupta dynasty period. Vedic people did not build any temple to house their periods. Earliest known written languages developed after 3000 BC. My question is how this all period are related, especially temple architecture and Vastu Shastra. So Shirish Mohile ji ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जवाब ऐसा है कि द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, बट जो चेन्नई के जो आईआईटी डिपार्टमेंट है उनको सब में पहले मिले हैं वास्तुशास्त्र के, जो कि रामायण और महाभारत में है, और उन्होंने एक मत्स्य पुराण जो है, जो विष्णु पुराण भी कहा जाता है, उसमें हमको वास्तु के दिए हैं। उसमें आर्किटेक्चर, टेम्पल और हिस्ट्री ऑफ वास्तुशास्त्र ये मेंशन किया हुआ है। बट इस चीज का जो रिसर्च है वो अभी भी चल रहा है और लोग इसमें अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये सब चीजें कब और कैसे आई। और हमारे जो वेद है, जो 4 वेद है, उसमें फर्स्ट इसमें ही लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने इसकी सृष्टि करी थी वास्तुशास्त्र के हिसाब से, और उन्होंने गॉड विश्वकर्मा जी को अपॉइंट किया था टू डू प्रॉपर वास्तु ऑफ दिस अर्थ। सो ऐसी मान्यता है, बट रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। सो इसके ऊपर और भी रिसर्च अभी आना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट क्वेश्चन इज फॉर न्यूमरोलॉजी एक्चुअली, but still I would like to answer. What is that question, Toby? This, we keep hearing that person change spelling of the name and prosperity and success came in this true. If so, how do you determine the change in the spellings and what is the reason for this positive change to occur simply by changing spelling of the first name? 100% वो स्पेलिंग चेंज करने से तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, बिकॉज जो न्यूमरोलॉजी है वो बेस्ड ऑन नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, एंड अल्फाबेट्स हैव देयर स्पेसिफिक नंबर्स। उनका लाइफ पाथ ही पूरा चेंज हो जाता है अगर हम उनके इसमें, जैसे कोई नाम है, राम नाम है, उसकी स्पेलिंग है RAM, उसमें हम एक RA और जोड़ देते हैं राम, तो उसके इसमें वो A की जो क्वालिटी है, A इज फॉर 1 नंबर, सो उसकी क्वालिटी से पूरा चार्ट बदल जाता है। और जब हम किसी का न्यूमरोलॉजी करते हैं तो हम चार्ट इस तरीके से बनाते हैं to be reduce their karmic baggages. Karmic baggages create struggle in their person's life. अगर उसका हम कार्मिक बैगेज हम कितना कम कर सकते हैं उतना कम करते हैं, उस हिसाब से उन लोगों की प्रोग्रेस फास्ट होती है, और वो एनर्जी हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं उस इंसान के बारे में। ऐसा करने से डेफिनेटली उसका जो लक है 100% तो नहीं बदलता है, बट यस यू कैन से 80-70% उस आदमी के लाइफ में चेंज जरूर आता है। सो इस हिसाब से न्यूमरोलॉजी से अपना ये बदला जा सकता है। Any more questions? Vimal, you can take the questions from the chat box, I think. Yeah. So there are a few questions. So one of the question is from Praveen. So what is the significance of number 108 or 9? 108 or 9? Or 9, yeah. It's a 9 number. 108 is again 9, and again this question is of numerology question. 9 is a very rigid number, and 9 number is ruled by Mars planet. So Mars planet is a very disciplined planet. अगर 9 number अगर किसी का है तो वो इंसान बहुत डिसिप्लिन होगा लाइफ में. He can become a doctor, scientist, और 9 नंबर को आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर 9 ही आता है. तो वो लोग आर्मी में जा सकते हैं. जब ऐसे देखा जाता है कि 9 नंबर के लोग मोस्टली आर डॉक्टर्स एंड आर्मी ऑफिसर्स.
तो इसीलिए 9 नंबर को डिसिप्लिन वाला नंबर कहा जाता है. इट इज रूल्ड बाय मास एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज lots of positivity also and very adamant. These people are very strong headed people. No one can change their perspective. So 9 number is important. Sure. There is another question. According to my name, which is Ruma Dubey, what color should I use in my bedroom in the northwest? Okay, tell me your birthday. Ruma, you can unmute yourself. My birth date is 23rd of April 1963. Okay, so 5 number. तो 5 नंबर के हिसाब से आप आपके रूम को you are saying you want to entire house or only bedroom? No, you had said, na, if according to the name, you can change, you can add the color to your bedroom in the northwest. That's what I want. Yeah. तो आप आपके बेडरूम में पिंक कलर का इस्तेमाल करिए और ओवरऑल इफ यू वांट टू चेंज योर हाउस तो आई वुड प्रेफर व्हाइट कलर फॉर यू बिकॉज 5 नंबर के लिए व्हाइट कलर बहुत लकी होता है और एक पिंक कलर. Okay, thank you. Okay. So another question is from Prakash Gurubakshani. Vastu Shastra is applicable to structures. Flats are shared structure. So southwest bedrooms may be a south in the structure. Also shared wall means shared vibrations. So to that extent, is Vastu applicable to flats, or it is said that houses should be on direction axis? Exception is when northeast entrance is at 45 degree to the axis. Can you comment? So, were you able to hear, Shilpa? Yeah. I'm just reading this question. Shared means vibration. You have to force on their vibration of that place. Okay. Sure. Okay. The Jinendra has asked about a question saying that only English names are changed, not Hindi. Again, it is numerology. Spelling we can change. Hindi में हम नहीं change कर सकते. Only spelling we can change because numerology is a Western science. Western. Okay. The last question from Anil Bora. Southwest kitchen is okay or not? No, actually not okay. But if you have kitchen in the southwest, आप उस चीज में आप एक काम कर सकते हैं. जैसे आपके घर में साउथ ईस्ट कहाँ पे आ रहा है वो आप देखिए और जहाँ पे आपके साउथ ईस्ट है वहां पे आप 20 दिन तक एक कैंडल जलाइए जिससे इसका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. और फायर एलिमेंट, साउथ ईस्ट इज अ फायर एलिमेंट, तो वहां पे आप थोड़ा सा पिंक कलर का यूज करिए जिससे आपके घर में हेल्थ, जो खाना बनाता है उनकी हेल्थ ठीक रहेगी. Sorry, and you can read the last question, which is from Jinendra. Definitely, I'm wearing so many rings because as per my planet, और उस हिसाब से मैंने पहने हुए हैं. If you want to wear, you can also wear. You can have guidance from me. So it is like that. Sure. Last question from my side is we have a pyramid. So any direction, anywhere, like where do we keep the pyramid? Pyramid का तो ऐसा है कि you can just keep pyramid where there is lot of negativity, lot of negative energy. आपके घर में pyramids आप वहां रखने से उस जगह का जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगा. वहां पे हम पिरामिड सजेस्ट करते हैं. जैसे टॉयलेट बाथरूम अगर गलत जगह बने हैं तो वी पुट पिरामिड्स ओवर देयर सो दैट एनर्जी ऑफ दैट प्लेस गेट एनहांस्ड. सो आपके घर में जो भी दोष है आप वहां पर लगाए पिरामिड, उससे आपके घर का ये जो भी नेगेटिव ऑरा है, एनर्जी है, वो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज.
No, there's no defect in the way the house is, but still, should we keep or should we not keep? If there is no defect in your house, then you should put this pyramid in northeast direction because it's a God pyramid. And it can give you high vibration when you put pyramids. Okay, thank you. Small question. We have a small question. Hello? Hello, yeah. Yeah, small question. We have a round dining table. You, what is the matlab, large for that? Because you said it's not good. We don't want to change the table. Square or circle? Yeah, if you can avoid, you can avoid. राउंड डाइनिंग टेबल पे ऐसा होता है कि वहां पे एनर्जी थोड़ी सी खराब होती है, तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पुट वन कैंडल होल्डर ऑन दैट डाइनिंग टेबल, और वो उसको आप खाना खाते वक्त या whenever you have your food, you just burn some candle on the dining table so that energy of that area get enhanced. Okay, thank you. हॉस्पिटल वास्तु के बारे में कुछ बोलिए ना। हाँ, हॉस्पिटल वास्तु जो होता है उसमें हमको एंट्रेंस का खास ध्यान रखना चाहिए। हॉस्पिटल में जब हम वास्तु करते हैं तो पेशेंट के लिए जो होता है वो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सजेस्ट करते हैं। आपके लिए जहाँ पे आपको बैठना है वो साउथ वेस्ट चूज करना चाहिए, और जो एंट्रेंस है वहाँ पे आप लाइट ग्रीन कलर का यूज करिए। रेस्ट हॉस्पिटल को आप व्हाइट कलर का यूज करिए, बिकॉज लाइट ग्रीन एंड व्हाइट कलर आर हीलिंग कलर। तो वहाँ पे आप हीलिंग को जितना आप ये देते हैं एनहांसमेंट, उतना अच्छा होता है। देयर यू कैन पुट डिफ्यूजर्स ऑल्सो एंड पिंक फ्लावर्स ऑल्सो। सो वहाँ का जितना भी नेगेटिविटी है, क्योंकि हॉस्पिटल में सब में ज्यादा नेगेटिविटी होता है, तो वो इसका नेगेटिविटी का ये हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, और वहाँ का वास्तु अच्छा हो जाता है। I think so. We'll take last question, Ajay, and then maybe probably Rakesh has asked, saying that ceiling of my bedroom is pyramid shaped. Is it good or is it not good? It is good. It is good. Okay. Thanks. Ajay, back to you. Thank you, Shilpaji. I'd like to thank you for Thank you. giving us Thank such you. such a wonderful talk about Vastu, different aspects of it. Why is it important? Different types, all the different directions, what they mean, and what is the significance of different directions, and the Feng Shui relationship with Feng Shui and Vastu, and also the history of Vastu is interesting. I didn't know that there is still so much research going on the origins. And interestingly, the Vastu of Pune city, right now things don't seem to be going too well for Pune city. So I hope the Vastu is not gone back. Also, thank you once again for answering all the questions so patiently. Some of them were quite complicated questions. So thanks you for the wonderful talk. All our members. Thank you. Thank you. Yeah. I think we need to put a pyramid in Pune River. Yeah. What about the pollution? Pollution is the major problem, in each and every city. Because of that pollution only, we are just facing all the problems. So is that the reason why COVID effect is the highest here? 100%. 100%. Okay. Thank you. Thank you. Can you show us the citation, please? Gajanan? So, Shilpaji, on behalf of all our members, please accept this certificate of appreciation from us. Thank you so much. Thank you so much. For such a wonderful talk. Thank you. Everybody enjoyed it. Thank you once again. Thank you. Thank you. Meeting is adjourned. Thank you, Shilpa.